Once again, good afternoon to all of you. And yesterday we were doing Amanda, na? We started Amanda. Yes, sir. Yeah. Wait, I have somewhere kept the book. God. Oh God. Wait. So, Amanda, it's a story about a girl. Teenager girl. A teenager girl is there. And girl or boy, when you are at that age, na, you want freedom. You want that you should lead your life according to your own wishes, but you live in dream world. You live in the world of, let's say, fantasy, imagination, and whatever you think right cannot be right. hmm? मिंडा कहाँ किसके बाद था जी? बताओ तो, किस लेसन के बाद था? कुणाल, माही, किस लेसन के बाद है? Sir, from the diary of the Anne Frank. हाँ, यस 58 कैसे ये बच गया था, हमको ये ताजुब लग रहा. खैर, इट्स अ सिंपल स्टोरी. This story about you people in the sense that you people are a bit mature, but only a bit mature, but you can't decide the different activities of the life, like what to do and what not to do. So you have to live within the dimensions of, within the, let's say, range of your parent, and you know that most of the time you have to take the advice and decision of your parents. Sometimes what happens that if you start taking the decision because you have no experience of the world, you can be wrong, and one decision, wrong decision, can be, let's say, damaging for your entire life. Suppose that some of you want to study maths at higher stage level, +2 level or later on, but your if father, mother, parents, teachers, if they think that, okay, Preeti, good, well done. My sound going now? Sound going clearly? Yes, sir. Oh Yes, God, sir. wait. So, if they think that no, you should study commerce or humanities, like, let's say, Hindi, English, history, eco. So what is right or wrong cannot be fully decided by the children. You are also teenagers, but you do not know what is in the future. And the parents knew a lot. We parents, we teachers, we knew a lot. We know a lot as to what should be given to you. So this is the story about that very girl. Perhaps she is talking to her parents, father or mother. Yesterday I have already highlighted many things. Again, I will, let's say, take your देखो, छोटे बच्चे हैं, नाखून ट्रिम करते रहते हैं, आदत लग जाता है कभी कभी. ये बतला रहा है बचकाना, childishness, the phase of, let's say childhood is there. Maybe she 13 or 14 years old. होता है. कैसे हम लोग क्लास में डांटते रहते हैं, टेढ़ा नहीं बैठो, ऐसे नहीं बैठो, वो नहीं करो, गप नहीं करो, हाथ धो के खाना खाओ. इसको भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं, या जो नरेटर है वो उनको डांट रहे हैं. डांटने का मतलब होता है ना प्यार करना. डांटना उसको जाता है जो अपना है, जो गलत कर रहा है उसको डांट के जब हम लोग सही रास्ते पे लाते हैं ना, तो वो लव होता है, वो केयर होता है, वो तुम्हारा वो नहीं होता है, वो दुत्कार और इंसल्ट नहीं होता है. इस चीज को हमेशा भी आके अपने जीवन में बैठाए रखना, ठीक है? Because this is the fact that one who scolds you, it means his attention is on you. Either they are parents, your seniors, or they may be, let's say, your teachers or parents. So first line again, let me go through it. A simple story is there. Don't bite your nails, Amanda. Maybe the parents telling, or anyone who is senior, huh? That
टेलिंग दैट डोंट बाइट योर नेल, डोंट ट्रिम इट, डोंट कट इट, है ना। आदत पड़ जाता है, बड़ों को भी कभी आदत रहता है, च्यू करते रहते हैं, वेरी बैड हैबिट। स्टॉप हंच योर सोल्जर, hunching whenever you sit, like you people sitting straight ना, in the same way he also telling that why you are hunching। बच्चे कभी कभी देखते हो बेंच पे थक के या बैठे बैठे वो बॉडी पेन होता है तो कैसे हंच कर जाते हैं, बोलते वैसे नहीं बैठो, वैसे बैठने से ना तरह तरह बीमारी होता है, हड्डी का प्रॉब्लम होता है। वंस एनीवन स्टार्ट सफरिंग एट दैट एज विद द बोन प्रॉब्लम ना, होल लाइफ ही कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, कभी रीढ़ में प्रॉब्लम हो जाता है, और इसका कोई दवा हुआ नहीं होता, दवा सिर्फ होता है पेन किलर कि दर्द हो रहा है तो दवा हमने ले लिया, अदरवाइज उससे कोई फायदा नहीं होता। तो पोस्चर और जेस्चर, उठना बैठना जब सही रहता है ना, देन आवर लाइफ एंड हेल्थ इज ऑल राइट। सब ठीक है आर्यन, खुशी, समझ रहे हो? अदिति, माही, Yes, sir. हाँ जी, आवाज जा रही है मेरा क्लियर? Yes, sir. नाउ different types of, you can say, instruction is there or advices is there, the do's and the don'ts, what are the things which you should do and what are the things which you shouldn't do, ठीक है। ऐसे वो लोग बोलते जा रहे हैं। कुणाल, ठीक है बेटा साहब? Yes, sir. आवाज है ना पूरा? तीसरा एडवाइस क्या है? Stop that slouching and sit up straight. Don't let say bend down. Whenever you are sitting, either on the desk, in the classroom, or at home on the table, on the study table, sit straight. Amanda, the main and central character of this very story. There is a languid emerald scene. अब इसके जेहन में आ रहा, बच्चे तो सपना के, कल्पना की दुनिया में, in the world of fantasy, imagination, in the dream, they, let's say, I mean, go. Even if they are not sleeping ना, they do it. There is a languid emerald sea. Emerald पत्थर होता है, ठीक है, और बोलते हैं ना पुखराज पत्थर को बोलते हैं, शायद हम भूल रहे हैं हिंदी इसका, एमराल्ड पुखराज ही होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। तो बोलता है ये देख रही है सपना ना कि क्या है हमारे सामने, हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, वास्ट, लेट्स से इनफाइनाइट, और लेट्स से आई मीन सी इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम स्टैंडिंग देयर, where the sole inhabitant is here, no one is there, I am all alone. Then what I will do? I will act like a mermaid. Means a kind of creature is there, which is not scientifically proved whether a mermaid exists or not, even today or that time, okay? But it's just kind of a fish, you can say, living in the, let's say, deep sea water, drifting blissfully. उसको लग रहा है सपनों की दुनिया में, समुद्र में पानी है, waves है, gush of water है, and just like the mermaid, I am, let's say, blissfully, happily, what doing? I am gliding or surfing or swimming into the waves of the water. Everything clear? बोलो, Yes, सब sir. ठीक है? उधर नजर नहीं आता स्क्रीन धूप में। कुणाल, सब ठीक है? अक्षत, माही, साक्षी, प्रीति, करिश्मा, टेल मी। Yes, sir. हाँ, ओके। तो ये फिर बोल रहे हैं आगे, मम्मी पापा, पेरेंट्स, सीनियर जो है, तुम 9 बजे रात को ना, इफ यू आर वाचिंग द टीवी, माही इज वाचिंग द टीवी, देन व्हाट आई विल टेल, इवन आई विल बी देयर ना, हे हैव यू स्टडीड और नॉट, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क और नॉट। होमवर्क कंप्लीट का मतलब होता है रिवीजन इन द माइंड, व्हाटसोएवर इज टॉट टू यू, कैसे हम लोग बोलते हैं, समरी लिखो, सेंटेंस बना, वो रिवीजन है, स्टोरी आ जाएगा तुमको पूरा। और ऐसे कोई चीज पर लिखना है ना, इट्स डिफिकल्ट टू राइट ऑन व्हाट टॉपिक आई शुड राइट, बट इफ द स्टोरी इज देयर ना, यू नो द स्टोरी, you will write, and at a time many things will happen. It will be a revision, the story will be retained in your mind, the language will be there, the words will be there, and that's why the parents are asking, the narrator is asking of the poem, what asking, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? बच्चों को अच्छी प्रवृत्ति डालते हैं, कभी कभी सिखाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की बातें। हम यहाँ छत पे बैठे हैं, कोई घर में नहीं है और काफी गंदा है, तो उसमें क्या हो गया, हम बड़े हैं या छोटे हैं, टीनेजर्स है, 13-14 साल के, जब खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा इसमें स्वीपिंग कर दी, झाड़ू बाड़ू कर दी, क्लीन कर दी। इसलिए अपने रूम में बच्चों को अधिकांशतः घर में
एक रूम दिया जाता है, सेपरेट रूम, स्पेसिफिकली फॉर लेट्स से आई मीन स्टडी. सो इफ यू आर स्टडिंग देयर, यू आर लिविंग देयर, इफ नो वन इज देयर, नो वन इज पेइंग अटेंशन, यू शुड ऑल्सो टाइडी योर रूम, क्लीन योर रूम. और ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, पर्सपेक्टिव है जो बच्चों को सिखाना चाहिए कि बड़े होने पर ना ये सब चीज को वो ध्यान दे. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. मॉम टेलिंग अगेन और फादर टेलिंग है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट योर शूज आर नॉट क्लीन, सो गो एंड वेदर यू हैव डन और नॉट, क्लीन योर शू एंड सॉक्स और नॉट. अमेंडा अब ये सोच रही है, पहले वाले स्टेंजा में सोच रही है क्या, कल्पना में हम मरमेड है. समझ में आ रहा है तुम लोग को? Yes, sir. कोई जल्दी नहीं है. Yes, sir. और दूसरे वाले में देखो ये क्या समझ रही है अपने आप को कि हम क्या है, ऑर्फन है. ऑर्फन उर्फन नहीं है, इसके पेरेंट्स है तो, लेकिन ये कल्पना कर रही है कि आई एम जस्ट लाइक ए ऑर्फन. जो ऑर्फन का मतलब हो गया वही कंप्लीट फ्रीडम. नाइदर मम्मी इज देयर, नॉट पापा इज देयर. आई विल रोम हियर एंड देयर एंड आई विल डू व्हाटएवर लेट्स से आई वांट टू डू, आई विल डू. तो वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फन. ऑर्फन है नहीं, रोमिंग द स्ट्रीट, एंड ऑर्फन मींस फुल्ली हैविंग फुल फ्रीडम एंड गोइंग फ्रॉम दिस टू दैट. छोटे उम्र में होता है कि ये टाउन में जाए, वहां घूमे, वैसे के बाजार में घूमना ना सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है. कुछ भी नहीं खरीदेंगे, मुंबई चल, बैंगलोर चल, गया चल, कहीं भी, पटना चल. ग्लैमरस शॉप्स आर देयर, मेनी थिंग्स आर, कम्युनिटीज आर देयर, लाइटनिंग्स आर देयर. दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स, especially in your age, in teenage, to roam on the road, means to wander here and there aimlessly without any purpose. I pattern soft dust with my hushed bare feet. She is barefoot. वो देख रही है मॉर्फन है, करीब है और खाली पैर है, नंगे पाँव है और पैटर्न बनाते जा रहे हैं. कभी कभी हम लोग भी ना गांव में जब रहते थे ना, तो उसका प्लस का, माइनस का, या वेव्स का, या पानी के धारा का ना पैर से बनाते चलते थे. ये देखो मेरा नदी है, ये ऐसे पानी बह रहा है, ऐसे ऐसे. तो ये बोल रही है पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट. बोल रही है कि पैटर्न बना रहा है जमीन पर जहां वो चल रही है, खाली पैर है, नंगे पाँव. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. बोलता है शांति है और सबसे अच्छी क्या बात है कि फ्रीडम. हालांकि हम बार बार बोल रहे हैं, ये स्टोरी तुमको 11th में भी मिलेगा, 12th में मिलेगा. नॉट द सेम स्टोरी बट गिविंग आउट द सेम मैसेज दैट चिल्ड्रन शुडंट बी गिवन complete freedom. They should be always living under the, let's say, domain and range and under the advice and instruction of the parent for a bright future of their life. Isn't it? 11th में एक किताब है फादर टू सन, और 12th में है तुम्हारा क्या नाम है उस लेसन का, डिटेल स्टोरी है, शुड बिजार्ड हिट मॉमी. वो बच्ची कहती है कि मम्मी को मारो, और पापा बोलते हैं नहीं मम्मी को मारो नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है, ये तो टीनेजर है, वो तो 3-4 साल की, 4 साल की बच्ची है. वो पढ़ोगे तुम 12th में जाके, मम्मी को कैसे मारो. मम्मी कैसी भी है, मम्मी इज फॉर रेस्पेक्ट, फॉर लेट्स से जस्ट लाइक ए गॉड एंड गॉडेस, शी शुडंट बी बीट. सो हियर आल्सो शी इज टेलिंग व्हाट, that the freedom is seed, that if I've got the freedom, it's very good. कहीं दुकान में बैठ गए, कहीं बाग में बैठ गए, कहीं बगीचा में बैठ गए, गांधी मैदान में बैठ गए, दुकान से घूम रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई रोकने टोकने वाला ले लेगा, बट इट्स नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म. सो टेक केयर. हियर ओनली वन थिंग हैज बीन हाईलाइटेड. There what was highlighted in Voli? Importance of what? Education for the girl. That is the main message, that if you are educated, especially the girl, she knows their rights and duties and she can take decision. And let's say the dowry system has also been highlighted into that very lesson. Lesson story क्या कर रहा है ना, it doesn't matter. What matters is what is the, let's say, hidden message being given out with the help of this very lesson. So you should also, if you know the message, you can, let's say, I mean, answer any sort of question. और आज हम कुछ कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, सेट भेजेंगे. सबसे पहले तो हम ये जो 15 बच्चे बैठे हैं ना, इसको हम बोलेंगे कल आके देखो बेटा लोग, हमको एक किताब मिला, ये हम लोग तुम सबसे एक तरह से हम, ये कौन है, प्रेरणा. Simply I will request you to have it from the market. That's English. This is exam idea and this is completely based on offline. Its price is 225 and it is available in, let's say, market, especially in the Pustak Sadan, Court Road. जो डोमिनो के सामने रास्ता जाता है अम्बेडकर मार्केट में, मेरा नाम लोगे, कम से कम तुमको 50 रुपया जरूर देगा. और जब तुम हजारों हजार फी में लगाए हो ना, डोंट रिस्क, only for 200 rupees. It will be available for you in 125. A number of, let's say, I mean, questions are there given. I will also take the photo and send you if you are not going to, let's say, buy it, but I will tell. एक महीना में सिर्फ उलट पलट के देख लोगे ना, it is going to upgrade you, your knowledge. और क्यों रिस्क लेंगे हम 100-200 रुपया के लिए. रात को सोते समय सिर्फ उलट पलट के क्वेश्चन आंसर, इसका समरी, इसका मैसेज पढ़ लोगे ना, तो जो हम पढ़ाए उससे अलग ये कुछ इसमें डाला हुआ है जो हम नहीं पढ़ा पाए, छूट गया.
और प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर देख लो, एंड 99% चांस इज देयर दैट ऑफलाइन 3 hours 80 marks exams will be conducted in the March because not the situation of corona has become normal, isn't it? और भगवान से मनाओ कि ऑफलाइन हो जाए, ऑनलाइन में you will get stuck. English is very tough in online already. You have appeared in, let's say, I'm in first term, and first term, let's say, exams result in English will not be good, I know, because the question was tough. और ऑफलाइन होगा ना तो वो कंप्लीट होगा तुम्हारा क्या, कि तुमको उसको लिख पाओगे, ऑप्शनल भी आएगा ना उसमें, तो क्लियर क्लियर रहेगा, वो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, तो तुम पे है whether you are going to have it or not it, but now it is available in the market. The publisher came and told, and I have the right for the future of the student for scoring well to buy this very book. Otherwise, it's up to you. I can't force you. Simply, just like a senior, like your teacher, like your parent, I can simply motivate you, advise you. I thought I told you to clean your shoes. Amanda, I am an orphan. ये सोच रही, देखते हो जब जब ये कल्पना करती है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. फिर इसके पेरेंट्स आ जाते हैं या जो भी नरेटर है, और ये बोलते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट. चॉकलेट यू नो इट डिकम्पोजेज आवर, लेट्स से, टीथ. और चॉकलेट में जो तुम्हारा देखो, हर इस तरह के चॉकलेट और चॉफी और चाउमीन और मंचूरियन जो है ना, इसमें प्रिजर्वेटिव होता है और एप्लीकेबल कलर होता है और सॉस वगैरह जो होता है, सब में केमिकल्स होता है, तो एक्ने प्रोड्यूस करते हैं. इस एज में यही बताता है कि ये टीनेजर में, जो तुम लोग का एज है 12 13 14 15 बरस का यूज होता है, पिंपल्स निकलता है, एक्ने निकलता है, और चॉकलेट से तो दांत खराब होता है, डिकम्पोज होता है, कभी कभी वो रॉट भी हो जाता है, सड़ जाता है, निकालने पड़ता है. तो ये बच्चों का एडवाइस है, चलो टॉफी खाएंगे बट ऑफ एंड ऑन, नॉट कंटिन्यूअसली, एंड नॉट इन, लेट्स से, इन बल्क और ह्यूज अमाउंट. प्रीति, खुशी, अदिति, साक्षी, आर्यन, दो प्रीति है, प्रीति राज एंड प्रीति कुमारी, करिश्मा, सब सुन रहे हो? बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. Listening? Yes. Listen. Yes. Yes, listen. Carefully listen. Without any burden. English से इंटरेस्टिंग Yes, sir. और इजी सब्जेक्ट कुछ होता ही नहीं है. नथिंग लाइक दैट. स्टोरी समझ गए? लैंग्वेज है तुम्हारे पास, ग्रामर करवा देंगे. जब मौका मिलेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा देंगे. और फिर आगे भी है, तो बोलती है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आइदर मॉम और लेट्स से, आई मीन फादर, और एनी सीनियर नरेटर, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यू यकने. अमेंडा बोलता है, अपना फेस देखो कितना पिंपल्स हो गया, जितना खाओगे ना उसमें केमिकल्स रहता है, प्रोसेसिंग कलर रहता है, प्रिजर्वेटिव्स रहता है, फ्लेवर के लिए केमिकल्स आता है, सुगंधित करने के लिए, एरोमेटिक बनाने के लिए. मत खा ये चेहरा पे, और ये चेहरा खराब हो जाता है. कभी कभी बच्चों का चेहरा ना होल लाइफ के लिए वो नोच नाच देते हैं, निकाल देते हैं. हम लोग को भी हुआ था अपने एज में, बहुत होता है, इसी एज में होता है. एंड दैट्स व्हाई शी वाज एडवाइस्ड नॉट टू ईट दैट वेरी चॉकलेट. रिमेंबर यू एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. और अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, माता पिता बात करें तो, इफ द पेरेंट्स आर टॉकिंग और इफ द टीचर आर टॉकिंग स्पेशली टू यू, टू एनी पर्टिकुलर वन, सी into their eyes, look into their eyes, otherwise it is a bad habit. कैसे बोल दिए कि जब हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, when I am talking to you, please look into my eyes. This is the, let's say, manners, etiquettes and cultured, and let's say good children do like that. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब ये फिर ब्रैकेट आ गया. ब्रैकेट जब जब आएगा, ये अपने ख्वाबों की दुनिया में, इमेजिनेशन में, कल्पना में, फैंटेसी वर्ल्ड में चल जाएगी. दैट आई एम रैपेंजल. रैपेंजल एक कैरेक्टर है, एक प्रिंसेस थी, ठीक है. In Hindi, I will tell you that she was, let's say, I mean, made prisoner into a very long tower and tied at the top of the tower. Then a prince came, and the prince told that she has very long and golden hair, that down it, with the help of your hair, I will, let's say, come on the top of the tower, and I will provide you freedom. I will get rid of your captivity. हम तुमको बंधन से मुक्त करके आएंगे. तो ये सोचती है कि हम भी रैपेंजल है, ठीक है. रैपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, बोलता है हमको कोई चिंता नहीं है. लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, बोलता है इस तरह का जीवन तो रेयर है. और ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब शांत लाइफ होता है, पीसफुल लाइफ होता है, कि हमको काफी मस्ती है, भले ही हम यहाँ कैदी के रूप में. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. और जो ओरिजिनल कैरेक्टर थी रैपेंजल की, वो अपना बाल को उसका प्रिंस बोला था कि तुम नीचे करो गोल्डन का. ये बोलते हैं हम अपना बाल को कभी खोलेंगे नहीं और खोल के नीचे डाउन करेंगे नहीं. आजकल तो का तो युग अलग हो गया.
girls don't opt for, let's say, I am in long hair because it's very much cumbersome and taking a lot of time. And now the students, I mean, girls students are studying a lot, so it take a lot of time. But see, telling that at any cost, I will not let down my bright hair. Stop that sulking at one. जो हमेशा मिमियाते रहते हैं ना, निनियाते रहते हैं. Let's say, I mean, getting angry and irritated and annoyed and fed up. Sometimes you are also fed up. तो उसको पेरेंट्स बोल रहा है क्यों तुम सल कर रही हो, क्यों उदास हो, क्यों डाउन एंड डिस्पेयर यू आर, स्टॉप इट, यू आर ऑलवेज सो मूडी. अमेंडा बोलते तुम तो हमेशा मूड में, नॉर्मल रहो. कभी मेरा मूड खराब हो सकता है, कभी हम कल्पना में, हमेशा कल्पना में रहोगे तो ओरिजिनल लाइफ जो है, फ्यूचर लाइफ जो है ना, वो खराब हो जाएगा. सो टेक केयर, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एंड यू वर थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. और बोल रहे हैं साहब कि कोई ना कोई हमेशा हमको समझेगा ना, तुमको देखने के बाद, whether I am your senior or your teacher or your parents, if anybody have a look and glance of your face, they will understand that I have badly scolded you. So don't do, means be on the right track, be on the natural track, and do whatever your seniors or parents who are your well-wishers suggest you to do, and stop all doing, let's say, nasty habits like that of not cleansing the room or the socks or the shoes and the chewing or the cutting of the nails by your teeth, and try to, let's say, I mean, manage yourself. Now you are bit growing and become of transition phase है ये, चाइल्डहुड से ये एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है. जैसे तुम लोग भी बढ़ रहे हो 14-15, अभी तो देर है, 10 साल और लगेगा एडल्टहुड की तरफ, लेकिन वो फेज उसी का. अब तुम अबोध बच्चे नहीं. ठीक है आर्यन, आर्यन कुमार, समझ रहे हो बेटा? Yes, कुणाल, sir. कुणाल, Yes, sir. सब ठीक है? यही तो पोयम है बेटा. देखो जैसे इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसको. इसमें और कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, अभी तो काफी समय है. हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा एज? टीन एज में होगी, 8-10 वर्ष, 12 वर्ष की होगी. हाउ डू यू नो दिस? Because all the time she was suggested and scolded by her mother or father, not written that who is, let's say, I mean, speaking to her, but still, what do you think is speaking to her? कौन बोल रहा है? सिंपल तुम लिखोगे आंसर इसका का, परहैप्स जोड़ देना उसमें. परहैप्स आर पेरेंट्स आर टॉकिंग टू हर, आइदर मॉम और फादर, मदर और फादर. ओके, और जो मेन क्वेश्चन है देख लो. They are in parenthesis because the idea is indifferent. They affect the inner thoughts of the girl. She could drift gracefully in the emerald sea. What could Amanda do if she were a mermaid? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है. अगर वो मरमेड हो जाती है तो क्या करेगी? वो ड्रिफ्ट करेगी, ग्लाइड करेगी, पानी में स्विम करेगी, बहते जाएगी. जैसे मरमेड मछलियां, शार्क वगैरह जो है ना, पानी के बहाव के साथ बहते रहती है. और कहाँ? तो उसको नाम लिख देना, एमराल्ड सी याद रखना. द सी विच इज ग्रीनिश इन टच और इन द कलर. ठीक है कुणाल? ऑल गुड एंड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड ओनली गुड चिल्ड्रन, लेट्स से, आई मीन, अटेंड क्लास. देखो ना 10-12 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो उससे मेरा क्या? आई हैव टू डू माई ड्यूटी, आई कांट, लेट्स से, आई बीन फोर्स. क्या है, कोई मैसेज है? बताते हैं. और क्या है? इज अमेंडा एन ऑर्फन? Why does she say so? Orphan है नहीं, but let's say in imagination, in fantasy, she says so. Why? Because she wants to, let's say, wander into the road with full freedom for any amount of time. Otherwise, she is not, let's say, I mean, what? She is not an orphan. बात तो चीज तो कर रहे हैं, ये पेरेंट्स ही ना बात कर रहे होंगे. नाखून नहीं चबाओ, रूम को साफ करो, चॉकलेट मत खाओ, दूसरा कौन बोलेगा? तो यहाँ पर जहां पर बात कर रहे हो, कैन से दो से इज नॉट, लेट्स से, ऑर्फन, बट इन दिस स्टेंजा व्हेनेवर शी इज, लेट्स से, आई मीन, थिंकिंग एंड टॉकिंग और इमेजिनेटिंग, शी इज जस्ट लाइक एन ऑर्फन हु वांट्स टू, लेट्स से, रोम इनटू द रोड एंड मेक पैटर्न्स ऑफ डस्ट बाय हर, लेट्स से, बेयर फीट. ये लिख देना, पूरा लाइन लिख देते हैं एक लाइन में. वो ऑर्फन नहीं है, लेकिन इस लाइन में वो ऑर्फन की तरफ बिहेव करती है, रोड पर घूमते चाहती है और अपने नंगे पैर से जमीन में कोई ना कोई पैटर्न बनाना चाहती है, एक्स का, वाई का, खिलौना का, हाथी का, घोड़ा का. ठीक है. डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल? अगर ये पूछेगा बोलना कि यस आई नो. इसमें क्या आंसर लिखा हुआ है? रेपेंजल का है, रेपेंजल वाज ए केयरफ्री पर्सन हु लिव्ड इन अ टावर वेयर हिज लाइफ वाज पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम वर्ल्डली केयर, देयरफॉर शी वांट्स टू बी रेपेंजल. ठीक है. वो एक ऐसा आदमी था, लड़की थी
जो कि फ्री टावर में रहती थी, और ये मेन रेपेंजल इसलिए बनना चाहती थी बिकॉज शी वांट्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ व्हाट, ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये क्वेश्चन से भी सावधान रहना। व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, और यर्न फॉर मतलब डिजायर फॉर होता है, यर्न मतलब डिजायर होता है, वो चाहती क्या है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमंडा, दैट्स इट childish, she doesn't have the practical knowledge and experience of life, she wants to lead life according to her wishes which shouldn't be done, otherwise her life will be spoiled। तुम उल्टा सीधा डिसीजन ले लोगे, पढ़ना है मैथ पढ़ लिया बायो, कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाएगा। कॉमर्स में है पूरा फैमिली, या कॉमर्स का तुम्हारे पास गट्स है, पकड़ है, बेंट ऑफ माइंड है, और तुम उठा लिए ह्यूमैनिटीज या साइंस, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ना है इस स्कूल में, पढ़ गए उस स्कूल में, तो वन डिसीजन आइदर मेक अवर लाइफ or damages our life, so take care, one decision of life whether small or big, it's matters the most। और तो कोई खास बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन लिखोगे, दो चार क्वेश्चन लिखो तो मेरे तरफ से फटाफट, इफ यू वांट टू राइट डाउन फ्रॉम दैट वेरी बुक, आंसर तुमको हम बाद में भेजवा देंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन इफ यू हैव द नोटबुक एंड द पेन, राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। हाँ, whenever you sit with your, let's say I mean books and notebooks, राइट डाउन, सिर्फ क्वेश्चन लिखो, आंसर तुम लिख लेना, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम देयर। हाउ इज द सी डिस्क्राइब्ड, वन लाइन, हाउ, आई होप आई एम ऑडिबल, हाउ इज द, माही साउंड गोइंग, Yes, sir. हाँ, हाउ इज द सी described, described, now write the answer in short form, the sea is described as beautiful and peaceful, the sea is described as beautiful and peaceful, शांत जीवन ये चाहती है, हो हल्ला वाला नहीं चाहती है, और फ्रीडम चाहती है। हर आदमी पीसफुल चाहता है, हर आदमी फ्रीडम चाहता है, हमारा जो मन है वो हम करते रहे। ओवर, आर्यन, रिटर्न। Yes, sir. Now next, about whom is the poem? About whom is the poem? पोयम किसके बारे में है? Talk to me in Hindi. Poem is about, write down. The poem is about a teenage girl named Amanda. About whom is the poem? The poem is about Akshat, Prerna, Preeti. All of you are writing. The Yes, poem sir. is about a teenage girl named Amanda. और कोई लेसन बाकी है आर्यन, हमको लिख के भेज देना। ये 20 Yes, सेक्शन के sir. दोनों बच्चे। हाँ, कौन लेसन बताओ। Sir, I mean animals. एनिमल्स नहीं हुआ है, No, sir. पोएम है ना वो। Yes, sir. हाँ ठीक है, टुमारो इट विल बी डन। और कोई आर्यन देख लेना Sir. No, इन sir. डिटेल। नो इन डिटेल यू विल सी। लाइफ में एक बार 10th एग्जाम होता है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नथिंग शुड बी लेफ्ट अनडन, अभी स्टिल लॉट ऑफ टाइम इज देयर, कल ही कर देंगे उसको। ठीक है, राइट डाउन। What is the purpose of? What is the purpose of the speaker's words? बोलने वाले का, चाहे जो भी हो, नरेटर हो, पोएट हो, ऑथर हो, पेरेंट्स हो, सीनियर हो, टीचर हो, what is the purpose of the speaker's words in the given extract? In the given extract, कौन एक्सट्रैक्ट है वो? एक्सट्रैक्ट देखो अपने बुक में, डोंट बाइट योर नेल्स, वो वाला पूरा 3 लाइन का जो तुम्हारा एक पैराग्राफ है, मिल गया। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स। उनके बोलने का मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है? राइट ऑन द आंसर। टू इम्प्रूव द लिसनर्स पोस्चर्स एंड हैबिट्स, टू इम्प्रूव द लिसनर्स postures
and habits. The purpose of the speaker is, वो तो तुम बाद में जोड़ लोगे, to improve the listeners postures and habits. ठीक है, उसका पोस्चर को सही करवाना है, उठने बैठने के तौर तरीकों को, और हैबिट्स कि गंदगी से दूर रहे, नाखून नहीं चबाए. क्लियर है? ये तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा. नाउ राइट डाउन व्हाट इज द मूड ऑफ द स्पीकर. जो बोल रहे हैं उनका मूड क्या है? सिंपली यू राइट डाउन एंग्री. दैट्स व्हाई यू आर इन्वॉल्वड इनटू डर्टी अफेयर्स like untidy room, untidy socks and chewing and like that. The speaker is angry. उनका मूड कैसा है? इस पैराग्राफ में एंग्री है, तब तो वो बोल रहे हैं. आगे लिखो. हो गया? आर्यन, माही. यस सर. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. हाउ वाज अमेंडा सिटिंग. कैसे बैठी हुई थी? हाउ वाज अमेंडा. टू द पॉइंट लिखना तुमको गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लिख लो. हाउ वाज अमेंडा सिटिंग. कैसे बैठी हुई थी? हाउ वाज अमेंडा. खुशी लिख रही है बेटा. प्रीति तो लिखो. शी वाज सिटिंग क्राउच्ड अप. हाँ लिखो, तुम अपने लिए लिखो. हम लोग तो सिर्फ मोटिवेट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे. शी वाज सिटिंग क्राउच्ड अप. झुक के बैठी थी. शी वाज सिटिंग क्राउच्ड. CROUCHED. She was sitting crouched up with her shoulders bent forward. ऐसे कंधा हम लोग आगे झुका के बैठे रहते हैं. She was sitting crouched up with her shoulders bent forward. BENT, bent forward, झुका हुआ कंधा. One important question is there. Write down. Still time is there. इसका आंसर तुम गड़बड़ा जाओगे. What does important question. एक बार सुन लोगे सब सही हो जाएगा. What does the repetition of Amanda है ना. Amanda को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो, सिंगल या डबल एक ही बात है. What does the repetition of Amanda at the end of each line reflect at the. ये बुक विजुअल है विजुअल. चलो ना हम फोटो खींच के भेजेंगे. What was Amanda what does the repetition of Amanda at the end of each line reflect. अगर बार बार Amanda कहा जा रहा है तो उससे पता क्या चलता है? What does the repetition of Amanda at the end of each line reflect? Question mark. इसका मतलब हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, चाहे हम तुम्हारे माँ बाप है, चाहे भाई है, चाहे टीचर है, तुम सही काम नहीं कर रहे हो. इसका मतलब आई एम फ्रस्ट्रेटेड एट यू. तो सिंपली राइट डाउन. इट रिफ्लेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर. इट रिफ्लेक्ट्स द frustration of the speaker. फ्रस्ट्रेटेड है. और एक लाइन और जल्दी से लिख लो, तो 1 मिनट रह गया. पहले वो देख लेना. इसमें आया है तुम्हारा पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस में है एक तुम्हारा रिपीटिशन. सॉरी, पोएटिक डिवाइस में है एक तुम्हारा, हाँ रिपीटिशन है, सॉरी एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन ऐसा लाइन वो देखो तो. स्टॉप दैट स्लाउजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. S कहीं नहीं मिलेगा. स्टॉप दैट स्लाउजिंग इसी में ना है. क्राउचिंग, स्लाउजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. तो S जहां भी है ये क्या हो गया? पोएटिक डिवाइस. Which figure of speech is used? Alliteration. You will simply write alliteration. और मेटाफर भी आया है कि नहीं आया? मरमेड की तरह है, ऑर्फन की तरह है. ठीक है, तो वहां मेटाफर भी आ गया.